Students, dear students, today we are going to complete the remaining and the third part of the chapter 6. This is Jodie's fawn. So before completing the third part, the last part of this chapter, let us recall what we read in the first and second part. Okay. Now in the first part, this is Jodie's fawn. We read that Jodie, who had killed a doe. For what? To save his father, which had been bitten by a rattlesnake. Okay, and just to save the life, and at that time they were in a forest, in a jungle, and for an instant medicine, what they did, they killed a doe at that time, and he used its heart and liver, okay, to draw out the poison from the body of his father. That the name of his father was Penny. Okay, and you could see here, after killing the doe, they saw that there was a fawn, a small kindle, the kid of that doe, and he was quite worried about that fawn, that fawn could survive without its mother. So Jody thinks here that it is his responsibility that he should take care of the fawn. So what he decides? He requests his father to bring that fawn at their home and raise him, उसकी परवरिश करें. And so he is also successful in convincing its mother. Then he goes into the jungle with a person named Millville. Okay, a person who is very close to their family, and at that time he was there. So uh, the Jody convinced him to go along with him, and they both of them went into the jungle in the search of the fawn. Okay. Then in the second part, what we saw, he started searching the fawn. Okay. He found the place where the doe had been killed by him. Clear? And he insists. He tells Millville to go back so that he will find that fawn alone. वो खुद उस fawn को अकेले ढूंढ लेगा, so that if he finds him, he will be quite happy, and he don't want to share his happiness with anyone. And if he don't find him, then he don't want to share his disappointment, his sadness with anyone. He don't want anyone to see whenever he is quite sad or quite happy. He saw the dead body, the carcass we read up here. Okay, the carcass means the remaining part of the dead body of the animals. So what he saw the carcass of the doe there, and many buzzards eating that flesh of that carcass of the doe. Okay, so this thing we read in the second part of the chapter. Now we are going to continue with the third part of the chapter, where he found the fawn and how he carries that fawn along the way, all his way, and how he carried it home. वो कैसे उसको अपने घर पे लेके आता है और कितनी मुश्किल से उठाकर उसको अपने घर लेकर आता है. So this all thing has been described in the third part. Okay, so let's start with our chapter. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. यानी the way he was moving towards the fawn, when he saw the fawn, okay, he tumble का मतलब होता है, हम कहते हैं ना, घूम जाते हैं, बैठे बैठे लुढ़क जाना, that is called as tumble. तो पीछे की तरफ लुढ़क जाता है. Startled here means surprised with frightened. Okay, डर के मारे भी सरप्राइज हो जाना. The fawn lifted its face to his. यानी fawn अपना चेहरा उसकी तरफ करता है. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with a stare of its liquid eyes. It means that it turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with a stare of its liquid eyes. It means that fawn, it turned its head, उसने गर्दन पीछे की, and it looked with its liquid eyes, यानी उसकी आंखें बड़ी बड़ी और ऐसे लग रहा है जैसे आंखें बहुत ही लिक्विड हो, मेल्टेड हो,
and it was staring that boy. It was quivering. Quivering here means shivering slightly. थोड़ा सा डर के मारे कांपना. It made no effort to rise or run. तो it means the fawn was actually sitting. तो it made no effort to rise or run. To rise or run. तो उस fawn ने ना तो उठ के खड़े होने की ना ही भागने की कोशिश की. जॉडी could not trust himself to move. जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, यानी जॉडी ये सोच रहा था कि अगर वो वहाँ से हिल गया, ठीक है, तो वो फॉन उसको देखकर उठकर भाग जाएगा. सो ही कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. ही विस्पर्ड इट्स मी. हिज विस्पर्ड यानी वो धीरे से फॉन को कहता है कि ये मैं हूँ. ऐसे जॉडी ये बताना चाहता है जैसे कि फॉन उसको पहचानता हो कि हु वॉज दैट पर्सन. वेदर वही तो नहीं, मतलब जॉडी का ये मानना है कि शायद वो एक नज़र में उसको पहचान जाए. द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज. नाउ यू कुड इमेजिन एक छोटा सा फॉन है, डियर, ठीक है, वो किस तरह से अपना नोज़ ऊपर कर रहा है. सेंटिंग हिम मीन्स स्मेलिंग हिम, उसकी खुशबू सूंघ रहा है जॉडी की. ही रीच्ड आउट वन हैंड. ही हियर मीन्स जॉडी. उसने अपना एक हाथ आगे किया. एंड लेड ऑन इट सॉफ्ट नेक. और उसके गर्दन पे यानी उसकी सॉफ्ट सी नेक पर वो हाथ रखता है. द टच मेड हिम डिलीरियस. डिलीरियस मीन्स एक्साइटेड. तो जब उसने उसको टच किया तो जॉडी वॉज क्वाइट एक्साइटेड विद दैट टच. ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स. ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स यानी वो घुटनों के बल पर, यानी दोनों हाथ और दोनों पैर घुटनों के बल पर उसकी तरफ आगे बढ़ता है. अनटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट. जब तक वो बिल्कुल उसके पास नहीं आ जाए. ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी. फिर वो पूरे अपने बाहों में, आप देख सकते हो कैसे हम किसी जानवर को, या छोटा सा पपी होता है या डॉग होता है, अपना पेट होता है, हम कुछ कैसे उसको अपनी बाहों में लेते हैं, है ना. तो सेम थिंग, उसने पूरा हाथ उसकी बॉडी की तरफ मूव्ड अराउंड इट्स बॉडी. अ लाइट कन्वर्शन passed over it, but it did not stir. A light convulsion means shivering. तो जैसे ही जॉडी ने उसको अपने आर्म्स में लिया, ठीक है, हाथ पूरा उसके ऊपर रखा, तो उसकी बॉडी में, किसकी, फॉन की बॉडी में एक शिवरिंग सी हुई. बट इट डिड नॉट स्टिर. लेकिन फिर भी वो नहीं हिला. ही स्ट्रोक its sides as gently as through the fawn, though the fawn were a china deer and he might break it. He stroked its sides as gently as though the fawn. मतलब here stroked its side मतलब वो अपने हाथों से उसको इस तरह से, आप देख सकते हो हम अपने हाथों से कैसे हल्के हाथों से किसी जानवर को प्यार करते हैं, सहराते हैं. तो सेम थिंग ही वॉज डूइंग. ऐसे लग रहा था उसको, ऐसे लग रहा था जैसे वो एक चाइना डियर है. चाइना डियर का मतलब एक चाइना क्ले होती है, जिससे खिलौने बनते हैं मिट्टी के. चाइना मिट्टी होती है और वो बहुत सॉफ्ट होती है, हाथ से छूट जाने पर टूट जाती है. तो वो जैसे कि वो जो डियर है वो कोई चाइना डियर है और कहीं उसके हाथ से वो टूट नहीं जाए. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन. स्लीक एंड क्लीन. स्लीक मीन्स स्मूथ एंड शाइनी. उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट, स्मूथ और बहुत ही शाइनी थी और बिल्कुल साफ. एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. और वो दिन भर झाड़ियों में रहती थी, ग्रास में, फॉन. तो उसकी बॉडी से मीठी भीनी सी खुशबू आ रही थी ग्रास की, घास की. ही रोज स्लोली. ही मीन्स जॉडी. वो धीरे से उठता है. एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड. यू कुड सी हियर हाउ ही हैड लिफ्टेड द फॉन. तो वो धीरे से उसको फॉन को ज़मीन से उठाता है. इट लेग्स हंग लिम्पली. इट लेग्स हंग लिम्पली मीन्स लूजली. तो उसके पैर ऐसे लटक रहे जैसे आप किसी जानवर को, किसी भी गोट को या कैरी करते हो तो उसके पैर कैसे लटकते. यू कुड सी हियर सेम वे ऐसे से, इजंट. तो इट इज़ कॉल्ड, इट्स हैग लेग्स हंग. हंग मीन्स लटकना. लिम्पली. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग. काफ़ी लॉन्ग थी उसकी लेग्स. एंड ही हैड टू होस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म. यानी उसके पैर इतने लंबे थे
कि उसको इतना ऊपर लेना था उसको कि वो ज़मीन के टच नहीं हो, क्योंकि जॉडी खुद इटसेल्फ ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, ठीक है, उसकी खुद की हाइट भी छोटी थी। तो जब वो उसको फ़ॉन को गोद में उठा रहा है तो उस फ़ॉन के पैर इतने लंबे हैं कि वो ज़मीन पे टच ना हो, इसलिए उसको और ऊंचा ऊंचा उसको पकड़ना होता है, ठीक है। होस्ट मीन्स पुल अप हायर, होस्ट मीन्स पुल अप हायर। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। उसको ये डर था कि वो जिस रास्ते से गुजर रहा है वहीं पे उसकी मदर के डेड बॉडी थी, ठीक है। तो ही वॉज अफ्रेड कि अगर एट अ साइट, यानी अगर वो अपनी मदर का कारकास यानी कि डेड बॉडी अगर देख लेगा तो इट माइट किक, वो उसको किक कर सकता है। और ब्लीड मतलब अ काइंड ऑफ साउंड मेड बाय दिस एनिमल्स एट द स्मेल ऑफ इट्स मदर, ठीक है, कहीं उसको अपनी मदर की स्मेल नहीं आ जाए और वो इस तरह से किक ना कर दे मुझे, तो उसको बहुत टाइट पकड़ना था। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग and pushed his way into the thicket. Skirted here means to go around, ठीक है, skirted means to go around the clearing, यानी जहाँ पर वो झाड़ियाँ थी वहाँ से उसको निकलना था, रास्ता निकालना था। and pushed his way into the thicket, और उसने अपना, thicket means a dense group of bushes और tree, बहुत सारी झाड़ियों का झुंड, पेड़ों का और झाड़ों का। तो उसको वहाँ से अपना रास्ता निकालना था और उस फॉन को उठाते हुए वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था उसके लिए। इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन, तो इतने सारी झाड़ियों के बीच में से उसको उठाकर निकलना, इट वॉज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर हिम। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, यानी वहाँ से गुजरते समय रह रह के उस फॉन की जो टांगें थी वो झाड़ियों में उलझ जाती, ठीक है। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, यानी वो खुद अपने पैर ईजीली नहीं उठा पा रहा था क्योंकि इतनी झाड़ियाँ और डेंस बुशेस थे वहाँ पे। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, या प्रिकलिंग वाइन्स यानी कांटेदार जो बेल होती है या पौधे होते हैं, तो वो उसको ये भी कोशिश करनी थी कि उस कांटेदार झाड़ियाँ उसको चुभ नहीं जाए फॉन को, ठीक है। तो टू शील्ड मीन्स टू सेव। इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, इट हैड बॉब्ड मीन्स टू मूव क्विकली, तो इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, हिज हार्ट थम्प्ड मीन्स द हार्ट बीट्स, द साउंड मेड बाय द हार्ट। तो वो उसकी जो धड़कनें थी वो बहुत तेज़ हो रही थी, बिकॉज ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड, बहुत हैप्पी, मार्वल मीन्स क्वाइट हैप्पी ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, यानी उसको पाने की, उसको ढूंढ निकालने की खुशी उसमें बहुत ज़्यादा हो रही थी उसको। ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, यानी जैसे जैसे वो झाड़ियों से बाहर निकलता है, ही रीच द ट्रेल, ट्रेल मीन्स पाथ, द वे, एंड ही ट्राई टू वॉक एज फास्ट, और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, इंटरसेक्शन विद द रोड होम यानी उस रास्ते पर जहाँ पर उसके घर का रास्ता निकलता हो। ही स्टॉप टू रेस्ट, और जब वो उस झाड़ियों से बाहर निकल जाता है और अपने उस रास्ते पर आ जाता है, उस मोड़ पर आता है जो रोड उसके घर की तरफ जाता है, तो थोड़ी देर वो रुक जाता है टू रेस्ट एंड सेट द फॉन डाउन ऑन इज डैंगलिंग लेग्स, तो वहाँ पर रुककर वो उस फॉन को भी नीचे उतार देता है। डैंगलिंग हियर मीन्स टू मूव फ्रीली। इट वेवर्ड ऑन दैम, इट वेवर्ड ऑन दैम, वेवर्ड हियर मीन्स लड़खड़ाना, ठीक है, टू बिकम वीक। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, वो जो फॉन था वो उसको देखता है, जॉडी को, और bleat, a kind of sound made by the deers. He said enchanted, I'll carry you after I get my breath, यानी ऐसा लग रहा था जैसे वो यूँ कह रहा हो फॉन कि मुझे वापस से उठा लो। तो he said enchanted, enchanted means quite happy, बहुत खुशी से। I'll carry you after I get my breath, मैं थोड़ी सांस ले लूँ फिर मैं तुमको उठा लूँगा।
He remembered his father saying that a fawn would follow if it had been carried. It had been carried. He started away slowly. उसको याद आया कि उसके फादर ने उसको कहा था कि एक बार अगर आप उसको उठा लो गोद में तो वो नीचे उतारने के बाद आपका पीछा ज़रूर करता है. तो ही स्टार्टेड अवे स्लोली, तो वो चलना स्टार्ट करता है. द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम. स्टेयर्ड मीन्स टू लुक, घूर के देखना. तो वो फॉन कंटिन्यूसली उसको देख रहा था जॉडी को. ही केम बैक टू इट. जॉडी फिर से मुड़कर उसके पास आता है. एंड स्ट्रोक्ड इट. स्ट्रोक्ड इट मतलब अपने हाथों से उसके पीठ पर हाथ से उसने हल्का सा थपथपाया. एंड वॉकड अवे अगेन. और फिर से वो चलने लगा. इट टूक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड हिम एंड क्राइड पीटियसली. तो वो थोड़े थोड़े से वॉबलिंग मतलब कूदते हुए चलना, ठीक है. तो वो थोड़े से कदम चलता है फॉन. एंड क्राइड पीटियसली. क्राइड पीटियसली यानी बहुत दया भरी आवाज़ से रोने लग जाता है. तो जॉडी को उसके ऊपर दया आ जाती है. इट वॉज़ विलिंग टू फॉलो हिम. उसकी इच्छा थी कि वो उसको फॉलो करे, जॉडी को फॉलो करे. इट बिलोंग टू हिम, जैसे कि वो जॉडी को ही बिलोंग करता हो, उसका ही हो. इट वॉज हिज ओन. ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय. He wanted to fondle it. He was light-headed with his joy means you could see unable to think clearly. यानी वो ये समझ नहीं पा रहा था actually what it wants means what the fawn wants actually. He wanted to fondle it, to run and romp with it. It means वो ये चाहता था कि वो चले और उसके साथ साथ वो फॉन भी चले, ठीक है. और फॉन्डल हियर मीन्स एक्चुअली स्ट्रोक और केयरस, यानी हम हाथ से जो थपथपाते हैं ना पीठ पे, जानवरों के ऊपर हाथ फेरना जिसको कहते हैं. तो ही वॉन्ट टू रॉम्प मीन्स प्ले विद इट. टू कॉल टू इट टू कम टू होम. और उसको वो कहे कि मेरे साथ साथ मेरे पीछे मेरे घर चलो. ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट. ही डेयर्ड नॉट अलार्म. अलार्म मीन्स टू फ्राइटन, डर जाना. तो उसने कहा कि अगर इस मेरे पीछे पीछे नहीं आया तो फ़ोन. तो उसने क्या किया, ही पिक्ड इट अप. उसने वापस उसको अपने हाथों में उठा लिया. एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स. और दोनों हाथों में उसको लेकर वो चलता है. इट सीम टू हिम डेट ही वॉकड विदाउट एफर्ट. ऐसा लग रहा था कि अब वो बिना किसी मुश्किल से ईजीली चल पा रहा था, क्योंकि वो रोड थी प्लेन, सिंपल रोड था. उस टाइम तो बहुत बुशेस थे, बहुत झाड़ियाँ थी और उसमें उसको लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा था. नाउ इट वॉज ईजी टू कैरी इट. हिज आर्म्स बिगेन टू एक. अब उसको उठाते उठाते उसके हाथों में, उसके आर्म्स में दर्द होने लग गया. एक मीन्स टू पेन. ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. फिर से वो रुक जाता है. वैन ही वॉकड ऑन द फॉन फॉलोड हिम एट वंस. तो उसने उसको उतारा, ठीक है. तो वो वैन जॉडी स्टार्टेड वॉकिंग, तो वो जो फॉन है वो अपने आप उसके पीछे पीछे चलने लगा. ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस. वो ये चाहता था कि थोड़ी दूरी तक तो कम से कम वो उसको चले, फॉन उसके साथ चले, क्योंकि उसका जो घर था वो कुछ ही दूरी पर था, यानी घर अब बहुत ही कम डिस्टेंस रह गया था. तो ही अलाउड इट टू वॉक अ डिस्टेंस. वो फ़ोन को उतार देता है ताकि थोड़ा सा वो चले तो उसके हाथों का दर्द थोड़ा रिलैक्स हो. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. उसका बस चले जॉडी का, तो वो तो भले पूरी रात और पूरा दिन चले उस फ़ोन के लिए. ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम. बिल्कुल पसीने से तरबतर हो गया था. स्वेट मतलब पसीना, लेकिन हल्की सी हवा चल रही थी. जून का सीज़न था तो सुबह सुबह की ठंडी हवा, उससे उसका सारा पसीना भी सूख रहा था. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. इट मीन्स कि स्काई जो है वो किससे, ब्लू चाइना कप से कंपेयर किया गया है, जो कलर होता है चाइना कप का, उससे. तो आसमान बिल्कुल साफ था. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. It means मौसम बिल्कुल साफ था, रात को हल्की सी बारिश हुई थी.
He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. तो he fumbled with the latch. Latch मतलब दरवाजे की जो हम लॉक लगाते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉक, ठीक है. और फंबल मीन्स एक्चुअली ग्रैबल, टटोलना. तो ही फंबल्ड विद द लैच, उसने लैच यानी वो लॉक खोला. और फिर ही सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, यानी उसने उस फ़ोन को नीचे उतारा ताकि वो उसको खोल सके लॉक को. देन ही हैड एन आइडिया. ही वुड वॉक इन टू द हाउस, इन टू पेनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. तो उसने सोचा कि मैं सीधा अपने फादर के बेडरूम में जाऊँ, पेनीज बेडरूम, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. और वो ये चाहता था कि फ़ोन को अपने हाथों में नहीं, अपने खुद चलकर फ़ोन उसके पीछे पीछे आए. बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पर, उस जो कमरे तक सीढ़ियाँ जाती है वहाँ पर फ़ोन ने आगे बढ़ने से मना कर दिया. द फोन बैक एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम. हियर यू कुड सी बॉक्ड मीन्स अनविलिंग, इच्छा नहीं करना. तो उससे वो सीढ़ियाँ चढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, ठीक है. एंड ही रिफ्यूज टू क्लाइम दैम. ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर. तो जॉडी ने उसको फ़ोन को अपनी हाथों में फिर से उठा लिया और अपने फादर के पास जाता है. एंड हिज फादर पेनी, ही वॉज टेकिंग रेस्ट, आंखें बंद थी. जॉडी कॉल्ड, पा लुक. जॉडी कॉल्ड, पा लुक. पेनी टर्न हिज हेड, अपनी सिर को मोड़ के वो देखते हैं. जॉडी स्टूड बिहाइंड हिम, बिसाइड हिम. जॉडी उनके पास में खड़ा था. द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम मीन्स यानी उसने फ़ोन को टाइट पकड़ रखा था. इट सीम्ड टू पैनी दैट द बॉयज़ आइज़ वर एज ब्राइट एज द फोन्स. पैनी को ऐसे लग रहा था कि द बॉयज़, उस लड़के की आंखें उतनी ही एक्साइटेड थी, इतनी ही ब्राइट और चमकीली थी जैसे कि फ़ोन की. ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम. मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने इसको ढूंढ लिया. जॉडी देन वेंट टू द किचन. फिर जॉडी किचन में जाता है. द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम. वॉबल्ड यानी वही लड़खड़ाते हुए, कूदते हुए चलना. अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन. सुबह जो दूध उसने छोड़ा था, दूध पड़ा हुआ था किचन में एक पैन में, ठीक है. द क्रीम हैज़ राइजन हॉट, उसके ऊपर मलाई आ चुकी थी. ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, यानी उसने उस क्रीम को वहाँ से हटा दिया. ही पोर्ड द मिल्क इनटू अ स्मॉल गार्ड. गार्ड इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ वेजिटेबल होता है ये, ठीक है. तो उसके अंदर उसने एक टाइप ऑफ लार्ज फ्रूट होता है, बहुत बड़ा सा, ठीक है. तो उसने उसके यहाँ पर गार्ड यानी एक फ्रूट यानी जो अंदर से बैकेंड किया हुआ होता है, तो उसने उसमें उसको डाला दूध को. ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और फ़ोन के आगे रख देता है. इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, यानी उसने उस दूध की खुशबू को सूंघा. एंड बटेड इट सडनली यानी अपने सिर से उसको हटा दिया. ही सेव्ड इट प्रिकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, यानी जब फ़ोन ने उसको हटा दिया अपने सिर से, तो तब वो दूध गिर नहीं जाए, तो तुरंत ही जॉडी ने उसको पकड़ लिया. इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, यानी कि सिर्फ उतने से दूध से उसको कुछ नहीं होगा. ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट दैम इन टू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, यानी कि सिर्फ दूध उसके आगे रखने से उसको नहीं पता चलेगा कि इसको कैसे पीना है. तो व्हाट जॉडी डिड, जॉडी पुट हिज फिंगर इन दैट, ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, उसने अपनी उंगलियां दूध में डुबोई और फ़ोन के मुंह पे लगा दी, उसको टेस्ट कराया कि दूध सॉफ्ट वेट माउथ. इट सक्ड ग्रीडीली, सक्ड यानी चूस लेना, तो उसने बहुत खुशी से उस दूध को चाटा. वैन ही विड्रू दैम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, और फिर जब वापस उसने उसके मुंह से अपनी उंगलियां हटाई, ठीक है, तो इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, यानी कि उसको जैसे कि उसको टेस्ट अच्छा लगा, उसने उसके मुंह से वो फिंगर्स क्यों हटाई,
तो उसको बट यानी उसको भी अपने सिर से मारने लगता है फ़ॉन। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, फिर से उसने अपनी फिंगर्स डिप की मिल्क में और फिर से उस फ़ॉन ने उस फिंगर्स को सक किया। ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, फिर से उसने अपनी उंगलियों को मिल्क में डिप किया। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, यानी वही चलता रहा, उसकी उंगलियों से ही वो दूध चाटता रहा। यू कुड सी हियर इन द पिक्चर हाउ इट इज सकिंग द मिल्क फ्रॉम इट्स फिंगर। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली, इट स्टैम्प्ड यानी जोर जोर से कूदना, ठीक है, थपथपाना, और स्मॉल हूफ्स मीन्स हिज स्मॉल लेग्स, तो वो जैसे कि बहुत एक्साइटेड है, उसको वापस वापस चाहिए। As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. यानी जैसे जैसे वो दूध पीता गया, the fawn was content means satisfied. It closed its eyes dreamily. यानी फिर fawn ने अपनी आंखें बंद की as if जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. It was ecstasy means quite excitement, quite happiness. उसकी अपनी उंगलियों को उसके मुंह में देना उसको बहुत अच्छा लग रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे करना। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्वर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, यानी बाकी का जो मिल्क है वो खुद फोन ने उसमें से पिया, और वैनिश्ड मतलब गायब यानी ख़त्म हो जाना। इन अ स्वर्ल, स्वर्ल यानी जब लास्ट में दूध बचता है, जब वो पीता है फॉन, तो यू कुड सी द मूवमेंट होती है उसमें, ठीक है, और हल्का सा झाग होता है और एक गर्गलिंग साउंड, गरारे, गर्गलिंग मीन्स एक्चुअली साउंड होता है पीने की, पानी जब हम पीते हैं जो साउंड होता है उसको कहते हैं गर्गलिंग साउंड। तो सेम थिंग द साउंड वॉज मेड बाय द फॉन वाइल ड्रिंकिंग द मिल्क। सो हियर वी हैव completed our chapter. Now you have to complete the question answers whatever been given and complete the chapter carefully, and I'll be giving you the answers of this question. Okay, thank you.